Good evening, ladies and gentlemen. We absolutely believe in the power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education wing by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading Industry Insights wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020 with the objective of boosting a small and medium business movement across the country and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members and the whole society through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder who is working for the nation-building cause and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development, creating industrial insights, inculcating industrial development, facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions, enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health, and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Karta, Spot, Digital, Womenpreneur, and Navorja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco environment, education, social and life. Now, it's time to present you Industrial Insights topic for the day. We all know that business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. And of course, business is to earn profit. Business comprises very many functions like marketing, sales, service, finance, purchase, R&D, engineering, logistics, human resource, personnel, facility, quality, and many others. Further, these functions will have various systems and processes. We need adequate knowledge and various skills to practice and execute these systems and processes, and handle these functions to run the business or an enterprise and achieve desired results. This is where industry insights play an important role in providing inputs on various topics for all kinds of business categories and professionals. Industry Insights will have series of programs organized every fortnight, and it will cover topics in different categories like
financial management and accounting, marketing, sales and service, managerial skills and people management, project management and planning, quality systems and quality management, business establishing process, government policies, support system, and legal aspects of business, and many more. These main categories will have very many subtopics to comprise all information and contents. For example, financial management and accounting will have financial planning, management accounting, auditing, taxation, etc., etc. Marketing, sales and service category will have brand management, digital marketing, handling objections, customer retention, etc. Under managerial skills and people management, we will have leadership skills, team building and motivation, delegating skills, analytical skill, and many more topics. Project management and planning category will have project planning and budgeting, resource management, risk management, strategic alignment, etc., etc. Under quality systems and management, there will be topics like 4 main elements of quality, 7 principles of QMS, total quality management, ISO, etc., etc. Government policy support system and legal aspects of business will cover topics like government schemes and policies, role of banking in economy, role and support of MSME, etc. The laws to maintain the decorum as per state and central government. With this brief about the industry insights, now I request our programs coordinator to take over for introducing today's topic and the speaker. Thank you. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Very good evening, friends. I welcome all of you on this FIAP platform, and I wish you a very, very happy and prosperous New Year to all. तो सभी को नूतन वर्ष का नव वर्ष का शुभकामनाएं एंड सभी को स्वागत है इस फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो इंडस्ट्री इनसाइट प्लेटफॉर्म है, जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल के लिए हर हफ्ते हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप पार्टिसिपेटिव रहिए, इंटरेक्टिव रहिए। आज हमारे साथ इस स्पेशल टॉपिक के लिए गेस्ट स्पीकर है मिस्टर संतोष कावरे, एंड आज का जो टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज ए बिजनेसमैन। ओके, बिजनेस कैश फ्लो ब्लूप्रिंट। तो आज हम जानने वाले हैं इस टॉपिक में फाइनेंशियल प्रोसेस क्या होता है टू इम्प्रूव कैश फ्लो। सो हाउ टू इम्प्रूव cash flow through a financial process. Then we will definitely see the usage of working capital. हम कैसे working capital को इस्तेमाल कर सकते हैं optimize करने के लिए, and definitely how to maximize the business profit. That is the main objective. So before I hand over to Mr. Santosh Kaure, I would like to briefly talk about him. He has got a very rich experience of 18 years in financial management, okay, in section. And after his post-graduation in commerce, he has done taxation in law, MBA in finance also. So, of course, he is a certified finance and soft skill trainer. ये बहुत ही अच्छा soft skill trainer है, plus finance का training भी देते हैं. And he is a virtual CFO and business finance coach and finance trainer. His main objective is to help all the business owners to maximize their business profit and cash flow also through implementation of financial process and systems in the organizations. देखिए, सबसे important एक सेक्शन है या डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में फाइनेंस का रोल अलग है, अकाउंटेंसी का रोल अलग होता है। फाइनेंस का रोल होता है बिफोर ट्रांजैक्शंस हैपन्स, सो बिजनेस प्लानिंग है, हाउ टू प्लान द बिजनेस, हाउ टू प्लान द बजट, राइट, एंड हाउ टू प्रेडिक्ट द प्रॉफिट्स, मार्केट, ये सारी चीजें इसमें होते हैं। एंड वी हैव गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टुडे। बिफोर ही स्टार्टेड हिज ओन profession, he was a senior manager in one of the telecom company, and he has got a great exposure in all kind of he's a blend of manufacturing, import, export, hospitality, manpower, real estate,
and construction, material handling, software, such a versatile personality we have today on this platform. So Mr. Santosh Kavre ji, we all welcome you. मैं सभी को मेरे साथ जोड़ने के लिए बोलता हूँ, सर जी को, संतोष जी को वेलकम करने के लिए. आप अपना चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करिए वेलकम. काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम मिस्टर कावरे. So before I hand over to him, a great welcome once again. Okay, friends. Thank you. Sir, now I will hand over to you without much ado. I hand over the session to you, please. Okay, you can share your screen. Okay, thank you, sir, for introduction किया है. तो अभी आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे सर ने बोला कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द बिजनेस में. जैसे हम सब लोग अभी हम शुरू करने के पहले ना, आई वुड लाइक टू नो कि जो भी यहाँ पे लोग ज्वाइन हो गए तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है. अगर जो लोग बिजनेस करते हैं ना, चैट बॉक्स में वो बी टाइप करें तो मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो बी टाइप करें, और जो लोग प्रोफेशन में जॉब करते हैं या सीनियर पोजीशन में वीपी मैनेजर तो पी टाइप करें, ताकि मुझे यहाँ पे जो ऑडियंस का जो पता चलेगा कि कौन कौन बिजनेस. काइंडली जस्ट पुट योर बी फॉर बिजनेस, पी फॉर प्रोफेशन. अगर आप कोई प्रोफेशन है पर्सनली तो आप पी टाइप करिए, और बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है तो आप बी टाइप करिए, सो दैट आवर गेस्ट स्पीकर विल अंडरस्टैंड कि कौन क्या कितना इसमें है. ओके, कौन सा प्रोग्राम अपना बिजनेस में है, क्या है प्रोफेशन में. ओके, बी टाइप करें संतोष सर ये है. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपको सभी को पता है कि बिजनेस में फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे हमारे जो बॉडी में हमारे ब्लड का कैसे इंपॉर्टेंस होता है कि ब्लड फ्लो अक्रॉस आवर बॉडी, और हमारा जो बॉडी है वो यहाँ पे फंक्शन करता है. विदाउट ब्लड आवर बॉडी विल नॉट बी फंक्शन प्रॉपरली. करेक्ट. तो वैसा ही अपने बिजनेस में, क्या अगर बिजनेस में आपके कैश फ्लो अच्छी तरह से फ्लो हो रहा है तो ये आपका बिजनेस है वो आपका प्रॉपरली रन हो सकता है. करेक्ट है. तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, आई शेयर माय स्क्रीन. तो करेक्ट, यस, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? जी दिख रहा है. ओके, थैंक यू सो मच. तो आप उसको स्लाइड शो मोड में डाल सकते हैं. यस. तो मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जो बिजनेस में और they want to multiply their business profit. तो वाई टाइप करें शेयर चैट बॉक्स में. जो लोग हैं कि अपना बिजनेस है वो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वाई टाइप करें. तो थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं कि आपका जो चैट बॉक्स है ना आप शुरू रख दो, ताकि मैं कुछ क्वेश्चन करेंगे तो यू कैन रिप्लाई मी इमीडिएटली. ओके, ग्रेट. और कितने लोग जो है हमारा जो बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल है वो ऑलवेज पॉजिटिव देखना चाहते हैं. यस टाइप करें, वाई टाइप करें. और जो कितने लोग हैं कि हमारे जो बिजनेस का कैश फ्लो है वो कंटिन्यूअसली बिजनेस में कैश इनफ्लो होना चाहिए ज्यादा रादर देन आउटफ्लो. यस टाइप करें. ग्रेट. तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको ये सब चीज चाहिए कि आपके बिजनेस में आपका जो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई करने का कैश फ्लो है आपको ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि छोटे छोटे कुछ बिजनेस के सिस्टम एंड प्रोसेसेस है ना वो अपने सिस्टम में वो क्या करना चाहिए, बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना जरूरी. तो
तो ये हमारे बिजनेस में क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते। तो आज के सेशन में हम क्या करने की क्या क्या सीखने वाले वो देखिए। सबसे पहले हम देखें कि हमारे बिजनेस का जो है पर्पस क्या होना चाहिए, कि डे टू डे एक्टिविटीज हम जो बिजनेस करते हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो बिजनेस करते हैं तो उसका लाइफलाइन क्या होता है। उसके बाद में जो बिजनेसेस है, बहुत सारे बिजनेसेस जो शुरू होते हैं और फेल भी होते हैं, तो उसके रीजन देखेंगे कि कौन से रीजन होते हैं कि बिजनेस फेल होने के लिए, और अकाउंट्स और फाइनेंस में क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उसके बाद में कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम बिजनेस में यूज कैसे करने वाले हैं, और कैश फ्लो के कुछ कंसेप्ट है वो सीखेंगे। और आज एक जो फाइनेंशियल प्रोसेस होते हैं तो उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे थ्रू कैश फ्लो, तो ये सब चीजें आप सीखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। उसके बाद में अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द सेशन आप आपके नोट डाउन करो, आपके डायरी पेन एंड डायरी करो, और एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्या करेंगे उसको क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। कि आपके जो भी क्वेश्चंस आंसर नहीं होंगे तो यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द सेशन। ताकि इसमें क्या है कि बिजनेस में इंपॉर्टेंट कौन सी है, 4-5 चीजें जो होती है तो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है कि यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होना चाहिए अपने बिजनेस में। अभी क्या है कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं कि सेम इंडस्ट्रीज के होते हैं, मगर उसी में अगर आपके बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो अगर यूनिक है तो वहां पे क्या हो सकता है, आपको वहां पे आपके कस्टमर को अप्रोच करने के लिए हेल्प होता है। दूसरा है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको अच्छी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, आपके टारगेट कस्टमर है वहां पे आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि बिजनेस ऑपरेशन से डे टू डे जो भी बिजनेस ऑपरेशन है वो अच्छे होने चाहिए। दूसरा है कि पीपल मैनेजमेंट एंड एचआर सिस्टम जो है वो होना चाहिए अपने बिजनेस। दूसरा है कि मैनेजमेंट स्किल्स है, एज ए बिजनेस ओनर अपने पास कौन से मैनेजमेंट स्किल्स है अगर आपके पास हो जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, आपके बिजनेस को आप अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। अकाउंट्स तो सिर्फ एक पार्ट है, वो हेल्प करता है कि फाइनेंशियल डेटा है वो गैदर करने के लिए। उसके बाद में कि जो भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होता है कि फाइनेंस जो मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कैश फ्लो ब्लूप्रिंट है वो हम सीखने वाले हैं कि बिजनेस में फाइनेंस मैनेजमेंट करके हमारा जो कैश फ्लो है हम कैसा इम्प्रोवाइज कर सकेंगे। उसमें कि कुछ साल पहले ना एक सर्वे हुआ था कि बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो फेल होते हैं। तो उसमें से होता है कि उसमें से 90% जो स्टार्टअप होते हैं कि विद इन 5 इयर्स बिजनेस हो जो है फेल होते हैं। कि ये जो सर्वे हुआ था कि IBM इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के थ्रू हो गया था, तो उसमें हो गया था। उसके बाद में जब रिसर्च किया तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि जो भी 90% बिजनेस फेल होते हैं तो उसमें से जो बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो फेल होने के कौन से रीजन होते हैं। तो एक तो होता है कि उनके जो प्रोडक्ट एंड जो सर्विसेज है वो अप टू मार्क नहीं रहते हमारे इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कभी कभी फेल हो जाती है, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो जाता है कि बिजनेस अच्छा रन होने लगा मगर कैपिटल जो है वो वहां पे नहीं है। मैनेजमेंट स्किल लैक हो जाते हैं उसके लिए। तो क्लियर बिजनेस प्लान नहीं, कहाँ पे हो चुके बिजनेस प्लान है क्लियर नहीं, इसके लिए भी बिजनेस एक फेल होते हैं। कि जो टीम है जो हमारे बिजनेस में सपोर्ट करती है वो अच्छी नहीं, इसके लिए होता है कि प्रॉपर बजटिंग सिस्टम नहीं है। ये सब चीजें जो बिजनेस फेल होने के जो रीजन है। मगर उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो उस सर्वे में जो फाइंड आउट हुआ है कि बिजनेस फेल होते हैं बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट होने से वो बिजनेस है मोर देन 60 to 65% जो बिजनेस है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस की वजह से वो फेल होते हैं। तो वो फेल ना होने के लिए हमें क्या क्या स्टेप करना पड़ेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि
बिजनेस की लाइफलाइन क्या होती है, जो हम डे टू डे बेसिस पे जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का लाइफलाइन क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि रेवेन्यू। अगर हमारा जो रेवेन्यू, जो भी टर्नओवर करते हैं, हम सेल करते हैं, उसका रेवेन्यू होता है। उसके बाद में होता है कि प्रॉफिट, करेक्ट है, वो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन हम कहते हैं कि रेवेन्यू टॉप लाइन एंड जो प्रॉफिट है वो बॉटम लाइन है। और दूसरा है कि कैश। अगर ये तीनों भी चीजें अगर आपने अच्छी तरह से मैनेज की तो आपके बिजनेस जो है वो आपका ग्रोथ है, आपको मिलेंगे। मगर उसमें से क्या है कि आपको सिर्फ इसमें से कौन सा भी एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रॉफिट तो होना चाहिए, मगर प्रॉफिट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू कैश। यानी क्या है कि बहुत बार होता है कि हम रेवेन्यू आता है बहुत सारा, प्रॉफिट पे होता है, हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखता है, मगर हमारे बैंक में बैलेंसेस नहीं रहते बहुत बार, करेक्ट है। जो भी हमारे प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो उसके लिए क्या है कि आपको अगर बिजनेस की लाइफलाइन अच्छी करने के लिए तो नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन कैश एज वेल। इसमें कि हम बिजनेस करते तो उसके पर्पस क्या है, अगर कोई भी अगर मुझे बताएंगे कि आपका जो बिजनेस, आप यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर है, तो आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, कि व्हाई डू यू डू द बिजनेस, आपके बिजनेस के पर्पस क्या है। मुझे चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस का पर्पस क्या है। ओके, प्रॉफिट विद सर्विस टू पीपल, ग्रेट। और ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ लोगों का होता है कि टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट करने के लिए हम बिजनेस करते हैं। तो कुछ लोग का जो पर्पस होता है वो होता है कि क्रिएट वेल्थ फॉर शेयर होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, तो उनके लिए जो वेल्थ है वो क्रिएट करने के, जनरेट एम्प्लॉय, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो टाटा जो है उनका जो पर्पस है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे जनरेट करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें टैक्स पे करने का है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो इकोनॉमीज है हमारी इंडियन इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी है तो उसको हमें क्या करने का है, इम्प्रोवाइज करने का है। दूसरा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना ज्यादा जरूरी थ्रू हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू। मगर दोस्तों कि जब आपका पर्पस ये सब चीजें है तो उसमें क्या है कि सबसे पर्पस है, ये सब होने के बाद में आपका पर्पस होना चाहिए टू क्रिएट अ वैल्यू बाय मेकिंग अ कैश प्रॉफिट, करेक्ट है। बाय क्रिएटिंग वैल्यू, वैल्यू क्रिएट क्या है कि जो भी आपके कस्टमर है तो उनमें क्या है कि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए थ्रू आपके बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू। मगर उसके साथ आपको क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट भी बनाना चाहिए, तो दोनों भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे वर्क होना चाहिए, तभी आपका जो बिजनेस है वो क्या करेगा, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करेगा। दूसरा है कि मेकिंग अ कैश प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग अ वैल्यू। तो आप तो बोलेंगे कि ऊपर का भी सेंटेंस और नीचे का सेंटेंस दोनों भी सेम है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसमें डिफरेंस ये है दोस्तों कि कुछ लोगों का जो होता है कि फोकस जो इंडस्ट्रीज में अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करें, तो उनका जो फोकस जो होता है कि प्राइमरी फोकस होता है कि वैल्यू क्रिएट करें, सेकेंडरी फोकस होता है कि प्रॉफिट है वो बनाए। तो नीचे जो है कि उसमें क्या है कि फोकस ज्यादा है प्रॉफिट बनाने में, और सेकेंडरी फोकस है वो बाय क्रिएटिंग वैल्यू। बिजनेस को अगर लॉन्ग रन करने का आपको हमें चलाने का है तो दोनों चीजें बिजनेस में होना चाहिए कि वेदर यू हैव फोकस ऑन प्रॉफिट और क्रिएटिंग वैल्यू, करेक्ट। इंपॉर्टेंट सबसे चीज है कि सोर्स ऑफ फंड, जब हम बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो उसमें क्या है कि बिजनेस के फंड्स के सोर्सेस क्या होते हैं। तो एक तो होता है कि सबसे पहले कि ओनर्स मनी, जो भी हमारा कैपिटल है वो हम सेविंग वगैरह करवा के वहां से हम
करते हैं तो होता है कि हमारा शेयर होल्डर के थ्रू आ जाता है। दूसरा होता है कि लेंडर्स मनी है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू हम लोन जो है उनके थ्रू हम यहाँ पे फंड जो है वो आते हैं बिजनेस में। और तीसरा सोर्स होता है कि हमारे जीरो कॉस्ट मनी क्या है कि एसएमई जो बिजनेस है तो उसमें बहुत ज्यादा जो जीरो कॉस्ट मनी है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहाँ से आता है कि ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स एंड फैमिली का हेल्प लेते हैं, क्योंकि छोटे बिजनेस होते हैं, ठीक है हमारे नया बिजनेस शुरू करने का है या बिजनेस हमें चलाने का कुछ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट शॉर्टेज हो गया, ताकि हम क्या करते हैं ऑब्वियसली वी आस्क फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि हमें हेल्प करो हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये तीन चीजें होते हैं कि हमारे अलग अलग सोर्सेस होते हैं जो उसके थ्रू हम क्या करते हैं हमारे फंड जो है हम रेस करते हैं। दूसरा एक हम देखेंगे कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है। करेक्ट। तो बहुत लोगों का होता है कि अकाउंट्स और फाइनेंस है वो एक ही चीज होती है क्या अलग अलग होती है, तो उसमें डिफरेंस क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अकाउंट्स क्या होता है कि इनपुट द रिकॉर्डिंग सिस्टम, जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो अकाउंट्स पर्सन क्या करता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है हमारे सिस्टम में क्या करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है कि फाइनेंस के पीपल क्या करते हैं कि फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं कि बिफोर ट्रांजेक्शन वो सभी फाइनेंशियल प्लानिंग हो। दूसरा कि अकाउंट्स क्या करते हैं पोस्ट ट्रांजेक्शन एक्शन का हो जाता है कि जो भी हम परचेस किया तो उसका जो रिकॉर्ड है वो परचेस अकाउंटिंग करने का, सेल हो गया सेल अकाउंटिंग करने का, पेमेंट्स हो गया तो पेमेंट्स का अकाउंटिंग करने का पोस्ट ट्रांजेक्शन होता है। अगर फाइनेंस के जो लोग होते हैं तो उनका जो एक्शन होता है कि उनका बिफोर ट्रांजेक्शन वो सब जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे वो उनको पता चलते। उसके बाद में एक ही एक्शन प्लान, अकाउंट्स के लोगों के पास ज्यादा एक्शन प्लान नहीं होता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उसे वो क्या कर लेते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं। मगर फाइनेंस के लोगों के पास क्या है कि फ्यूचर एक्शन प्लान रेडी होते हैं कि हमें आगे डे टू डे बेसिस पे क्या करने का है। उसके बाद में कि गेट प्रॉफिटेबिलिटी नंबर पोस्ट अकाउंटिंग, जो अकाउंट पर्सन है अकाउंटिंग होने के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है उनको मिलते हैं। मगर उसी में क्या है कि फाइनल जो पर्सन है वो क्या कर लेते हैं कि पोस्ट अकाउंटिंग नहीं प्री अकाउंटिंग ही प्रॉफिट है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने के बाद हाउ मच प्रॉफिट वी कैन हैव इन द बिजनेस। बाद में कि उनके पास फ्यूचर रोड मैप होता है कि बिजनेस को आगे चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बिजनेस के डायरेक्शन से वो पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करने का है। बाद में कि फंड अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसका फंड का प्लानिंग है, ये सब चीजें हम क्या कर लेते हैं कि ये सब चीजें आपको पता होना ज्यादा जरूरी है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में डिफरेंसेस क्या है। कि ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होता है कि फाइनेंशियल जो पर्सन है वहां पे ज्यादा होता है कि नॉट की अकाउंटिंग पर्सन। अकाउंटिंग पर्सन के सिर्फ जो रिकॉर्ड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो सिर्फ यहाँ पे मैनेज करते हैं। दूसरा है कि हम पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बिजनेस ओनर को। वर्किंग कैपिटल क्या नहीं कि हमारा जो कैपिटल है वो क्या होता है कि दो टाइप के कैपिटल्स होते हैं। एक तो होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म यानी क्या है कि 12 मंथ्स और कम समय के लिए जो भी हमारे पास कैपिटल आए शॉर्ट टर्म कैपिटल कहते हैं उसको। और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो भी फंड्स और कैपिटल जो है वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल। वो दो टाइप के होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो उसको हम यूज कैसे करना चाहिए। बहुत बार ना कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो यूज कैसे करते हैं ना वहां पे थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल से हम कहाँ पे यूज करें। तो उसके लिए हमारा जो भी फंड्स है उसका यूसेज कैसे होना चाहिए। जो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड्स है वो आते हैं यहाँ पे
तो उसको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। मीन जो भी हमारे 6 महीने साल भर के लिए या 4-5 महीने के लिए जो फंड्स अवेलेबिलिटी होती है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए सिर्फ हमें यूज करना चाहिए। और जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए क्या मीन, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गए, कुछ फिक्स एसेट्स हो गया, या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का हो गया कि आपका लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म फंड। मगर लॉन्ग टर्म फंड्स है वो आप शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए भी कभी कभी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स है, तो हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मगर रेगुलर बेसिस में नहीं, कभी कभी वो अलाउड होते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट टर्म फंड्स है वो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। यानी क्या है कि हमारे पास 6 महीने के लिए कोई फंड्स आ गया, तो उसको हमने क्या कि 6-7 महीने के लिए सिर्फ यूज करना चाहिए। तो उसका जो यूसेज है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मगर जब हम छोटे बिजनेस है, एसएमई सेक्टर में, जब मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें बहुत बार होता है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए फंड क्रिएट है, और उसको हम क्या कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए उसका यूटिलाइज हो जाता है। तो वो यूटिलाइज होने के कारण उसका प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि हमारे डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म फंड से उसको आप लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको यूज नहीं करने का है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब हम डिस्कस करते हैं, ताकि लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज है, मगर उसका जो इम्पैक्ट है, जब हम यूज करने के बाद जो इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है बिजनेस में। तो ये आपको ध्यान में रखने का है कि आपको जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स है वो शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए ही यूज करने का है। दूसरा एक हम क्या कर लेते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी होती है, बिल्डिंग होता है, हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, कि सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे कि प्रोडक्टिविटी है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी बिजनेस के एसेट्स है वो प्रोडक्टिव एसेट्स है या आपका नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है। करेक्ट है, बिजनेस के एसेट्स है वो प्रोडक्टिव ही होना चाहिए। तो आपको क्या करने का है कि आपके बिजनेस के कौन से एसेट्स आपके पास है उसको लिस्ट डाउन करने का है, बराबर। तो लिस्ट डाउन करने के बाद में क्या है कि आपको क्या करना है कि ईच एंड एवरी एसेट में आपका बिजनेस में वैल्यू क्रिएट होता है कि नहीं, वो आपको चेक करने का। वैल्यू क्रिएट यानी क्या है कि आप उसको यूज करते हैं और आपके बिजनेस एक्टिविटी में उसका क्या होता है कि इस्तेमाल होता है। तो उसको आपको क्या करना है कि पॉजिटिव प्रोडक्टिव एसेट और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करने का। अगर आपके पास कौन सा भी एसेट ऐसा आइडेंटिफाई होता है कि वो नॉन प्रोडक्टिव है, करेक्ट है, ऐसा कौन सा भी एसेट अगर आपके पास आइडेंटिफाई होता है कि वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है, तो उसको आपको क्या करने का है, तो यू कैन टेक अ डिसीजन, उसको आपको आगे जाके इस्तेमाल करने का है या आपको आपके बिजनेस से उसको अलग करने का है। करेक्ट है, तो वो आपको डिसाइड करने का। नॉन प्रोडक्टिव है तो आपके बिजनेस में रख के उसका फायदा नहीं होगा, आपके जो फंड्स है वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखने का है। दूसरा है कि एसेट परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी जो होती है, तो आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होता है उसका। एक तो होती है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हो जाता है कि अगर कौन सा एसेट कम परफॉर्मेंस दे रहा है या कुछ मशीनरी है वो आपको 100% 80% परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर होगा और डायरेक्टली उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। दूसरा है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वो यहाँ पे कम हो जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट है, कुछ ओल्ड एसेट्स है उसको आपको मेंटेनेंस ज्यादा आ रहा है तो उसका कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ता है। दूसरा है कि
एनर्जी एंड फ्यूल कंजम्पशन है वो यहाँ पे ज्यादा लगते हैं, दूसरे की मैन पावर कॉस्ट है यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक आइडेंटिफाई करने की कौन से एसेट्स है वो प्रोडक्टिव है और नॉन प्रोडक्टिव है। यहाँ पे इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा कैश फ्लो का कंसेप्ट क्या होता है हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का कंसेप्ट क्या होता है वो देखेंगे। जब भी हम कौन सा भी बिजनेस करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा कैश इनफ्लो होता है, करेक्ट है, कैश आता है हमारे बिजनेस में। उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी हमारा ऑपरेशन शुरू होता है और वहां पे हमारा इनकम आ जाता है, इनकम यानी रेवेन्यू आता है। हम बिजनेस में हमारे सर्विसेज एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेच के हमें इनकम आता है। तो इनकम आने के बाद में क्या है कि उसमें से कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, एक्सपेंसेस होने के बाद जो भी रिमेनिंग हमारा अमाउंट बचता है वो क्या होता है हमारा प्रॉफिट बचता है, करेक्ट है। तो ये नॉर्मल हो गया कि इनकम आ गया, उसमें से कुछ खर्चा हमने किया और जो बचा हुआ है वो हमारा क्या है कि हमारा प्रॉफिट है, करेक्ट है। मगर प्रॉफिट के बाद में क्या है कि प्रॉफिट जो भी हमारे पास बचता है दैट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू एसेट्स में कन्वर्ट होना ज्यादा जरूरी है, करेक्ट है। तो कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है कि प्रॉफिट का कन्वर्जन एसेट्स में करेंगे और एसेट जो है तो इस्तेमाल होना चाहिए आपका वापस इनकम जनरेट करने के लिए, करेक्ट। एसेट जो है इनकम जनरेशन करने के लिए यूज होना चाहिए। तो ये साइकिल जब आपकी पूरी हो जाती है तो उसमें आपके बिजनेस में क्या होता है कि कैश इनफ्लो हो जाता है, प्रॉफिट आ गया, आपने एसेट क्रिएट की, उससे रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो ये सब साइकिल जब पूरी होती है तो उस समय कहते हैं कि कैश इनफ्लो आ जाता है हमारे बिजनेस में, करेक्ट है। तो उसके बाद में क्या है कि जब भी आप एसेट, हमारी एक एसेट साइड है और दूसरी साइड होती है हमारी लायबिलिटी साइड होती है हमारे बैलेंस शीट में, करेक्ट है। तो बैलेंस शीट में होती है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस के थ्रू आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। और जब भी आपकी लायबिलिटी आ जाती है, लायबिलिटी यानी क्या होता है कि आपका आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो हो जाता है। लायबिलिटी यानी क्या है कि आपका फ्यूचर कैश आउटफ्लो जो भी आपके बैलेंस शीट में दिखता है ना वो आपके जो भी नंबर है, तो इसका मतलब कि इन फ्यूचर में आप क्या कि आपके बिजनेस में से जो भी कैश है वो क्या होने वाला है, बाहर जाने वाले। यानी एसेट्स यानी क्या है कि इन फ्यूचर में आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो होने वाला है। तो ये दोनों जो अलग अलग कंसेप्ट है कि बहुत बार बिजनेस ओनर में क्लैरिटी नहीं होती कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे कैश फ्लो के ऊपर क्या होता है, कैश फ्लो के ऊपर क्या होता है, एसेट्स का इम्पैक्ट इन फ्यूचर में क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो होता है, और लायबिलिटी यानी क्या होता है कि हमारे बिजनेस में फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होने वाला है। तो उसके बेसिस पे यू कैन बजट कर सकते हैं कि आपको इनफ्लो ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा आपके बिजनेस में। ये जो कंसेप्ट है वो ओवरऑल साइकिल है, ईच एंड एवरी बिजनेस में चलता रहता है। उसके बाद में देखिए कि फाइनेंशियल प्रोसेस क्या होना चाहिए हमारे बिजनेस में, कि डे टू डे बेसिस हम क्या कर लेते हैं कि हम बिजनेस रन करते हैं, मगर बहुत बार मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस की वजह से बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन को हमारे बिजनेस ओनर को फेस करना पड़ता है। अगर हमें ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो नहीं आना है आपके बिजनेस में इन फ्यूचर में, ताकि क्या है कि आपका बिजनेस है वो डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ भी इश्यूज ना आए। तो उसके लिए क्या है कि हमने जब शुरू में मैंने बताया कि आपके बिजनेस में कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी कैश इनफ्लो होना चाहिए, तो आपको क्या करने का है कि आपके बिजनेस में सिस्टम एंड प्रोसेसेस है वो इम्प्लीमेंट करने का है। ताकि जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था और उसके बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट के जॉब से हमें प्रोफेशन में शिफ्ट होने का है, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि हमारे फाइनेंस का, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो क्या कर सकते हैं सब चीजें, वो सब
रिसर्च और स्टडी, बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद में, बहुत सारे एक्सपर्ट है उनके साथ डिस्कशन करने के बाद में ये जो बिजनेस प्रोसेस है वो हमने बनाई है। तो ये बिजनेस प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली आपके कैश पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पे हेल्प होने वाली है। तो बिजनेस प्रोसेस क्या होने वाली है दोस्तों, ये जो बिजनेस प्रोसेस है कि सबसे पहले आपके बिजनेस का जो डेटा है आपको पता होना चाहिए। डेटा यानी क्या है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है, आपके बिजनेस के कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो कौन से सोर्सेस से आ जाता है, कैश आउटफ्लो कहाँ से होता है, इन फ्यूचर में आपके बिजनेस में कौन से आउटफ्लो होने वाले, कैश के इनफ्लो होने वाले, ये सभी डेटा में फाइनेंशियल जो डेटा है आपके पास होना चाहिए ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर। तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो डेटा हो गया कि आपका अकाउंटिंग डेटा, एक डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली कि आपके बिजनेस में जो भी अकाउंट पर्सन है उन अकाउंट के पर्सन इजीली यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो डेटा लेके आपको क्या करने का है, आपको अलग अलग रिपोर्टिंग फॉर्मेट में उसको क्रिएट करने का है। रिपोर्टिंग यानी क्या है कि आपका, हम देखते हैं कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मगर ऐसे बहुत सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं कि आपको रेशियो एनालिसिस करने का है। तो उसके लिए आपका पीबीटी क्या रेशियो है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रेशियो है, आपका स्टॉक कन्वर्जन रेशियो क्या है, ये सभी जो रिपोर्ट्स है आपको ऑन रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं एज ए बिजनेस ओनर, कुछ रिपोर्ट्स है फाइनेंशियल एंगल से ओनली, कुछ रिपोर्ट्स है वो डेली बेसिस पे हमें रिव्यू करना चाहिए फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कुछ रिपोर्ट होता है हमें वीकली बेसिस पे रिव्यू करना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स है हमें मंथली बेसिस पे, और कुछ रिपोर्ट जो होते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे एंड एनुअली बेसिस पे हमें रिव्यू करना चाहिए। तो उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं कि अलग अलग रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होते हैं, तो हमें अलग अलग पीरियोडिकली बेसिस पे मगर रेगुलर बेसिस पे हमें रिपोर्ट से रिव्यू करना चाहिए। जब मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर को मिलता हूँ तो उनको मैं एक क्वेश्चन करता हूँ हर समय कि आपका जो बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, आप कब चेक करते हो उसको। तो बहुत बार मिस अनएक्सपेक्टेड जो आंसर है वो मिलते हैं मुझे कि लोग कहते हैं कि हम जब बैलेंस शीट हमारा फाइनल होता है कि मार्च का बैलेंस शीट है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में फाइनल होता है, तो उस समय हम देखते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है तो उसका क्या होता है, जब हम हमारा जो 12 मंथ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने के बाद में 3-4 महीने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर होता है। ताकि आपको क्या करना चाहिए, आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपको क्या करना चाहिए, हर महीने देखना जरूर है, ना कि एनुअली बेसिस पे, ताकि आपको क्या करते कि डेली बेसिस रेगुलर बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए आपको यूज होने वाला है। तो डेटा से आपको क्या करने का, आपको अलग अलग रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे क्रिएट करने का है, करेक्ट। उसके बाद में एक रिपोर्ट्स करके क्या करने का, आपको एनालिसिस करने का। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट किया है तो उसमें से आपको क्या करने का है कि टर्नओवर रेशियो क्या है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपके रेशियो एनालिसिस है, आपका वर्किंग कैपिटल क्या है, आपके डेटर्स का एजिंग क्या क्या है, वो सब चीजें आपको क्या करना है, एनालाइज करने का है। तो एनालिसिस किया तो आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ पे क्या हो गए कि गड़बड़ हो गई है, तभी आपको यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता चलेगा।
करेक्ट। तो उसके बाद में क्या है कि एक मिनट, हाँ, मैं मेरा जो हेडफोन का जो सेटिंग है वो मैं 1 मिनट के लिए चेंज करता हूँ। शुअर सर, शुअर सर। मेरा आवाज आ रहा है क्या? आप एक बार येतोय व्यवस्थित येतोय. व्यवस्थित येतोय. ओके, सांगा, व्यवस्थित सांगा, काय अडचण नाही. ठीक है. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी रिपोर्ट है उसको आपको क्या है कि एनालिसिस आपके एंड से जो भी रिपोर्ट्स का आप देखेंगे उसको क्या करने का, आपको रिव्यू करने का है. करेक्ट है. तो उसके बाद में कि जो भी आपके एनालिसिस होंगे तो उसके बेसिस पे आपको क्या करने का है कि आपको एक्शन प्लान बनाने का है कि आपके बिजनेस में क्या क्या गलत हुआ है प्रीवियस मंथ में, तो उसको क्या करने का है कि आपको सुधारने के लिए आपको क्या क्या एक्शन प्लान करने का है. तो यू हैव टू नोट डाउन कि ये चीजें है कि नेक्स्ट मंथ में हमें इम्प्रोवाइज करने का है, और इम्प्रोवाइज करने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 जो भी एक्शन करने के हैं तो आपको नोट डाउन करने का. ये मेरा एक्शन प्लान रहेगा कि नेक्स्ट महीने के लिए अगर आपका रेवेन्यू डिप डाउन होता है तो नेक्स्ट महीने में आपको इम्प्रोवाइज करने का है, तो आपको कौन से एक्शन लेना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्टिविटी किसी एक महीने में अगर कम हो गया है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर होता है. तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूवाइज करने के लिए आपको क्या क्या एक्शन प्लान करने की है, तो आपको क्या करना है, एक्शन प्लान बनेगा आपके बिजनेस में. अगर आपके बिजनेस में क्या हुआ है कि कैश इनफ्लो कम हुआ है तो आपको डेटर्स के वहां पे चेक करना पड़ेगा कौन से डेटर्स है हमारे जो बियॉन्ड क्रेडिट लिमिट गए, तो उसको हमें फोकस करना चाहिए कि हमें वहां पे रिकवर कैसे करेंगे. तो वो रिकवर करने के लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने के, कौन से कस्टमर है उसको ज्यादा आपको पुश करने का है, कौन से कस्टमर है उसको आपको फॉलोअप करने का है, ताकि आपका जो भी जो रिकवरी है वो टाइमली हो सके. तो फिर उसको क्या करना है, आपको एक्शन प्लान है वो बनाने का है. हर रिपोर्ट एनालिसिस करने के बाद आपको एक्शन प्लान बनाना जरूरी है. और एक्शन प्लान बनाने के बाद में अगर आप उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है ऑब्वियसली उसका रिजल्ट है आपको पॉजिटिव ही आएगा. आपको मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूं कि इस जो प्रोसेस अगर आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, अगर बिजनेस एक्टिविटीज में अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है आपका 100% पॉजिटिव ही आने वाला है. तो प्रोसेस क्या है कि आपको क्या करने का है कि डेटा क्रिएट करने का है आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, उसको अलग अलग रिपोर्ट्स है वो क्रिएट करने के है. जो भी रिपोर्ट्स क्रिएट किए उसको एनालाइज करने का है. एनालाइज करने के बारे में आपको पता लगेगा व्हाट इज वेंट रॉन्ग, व्हाट इज वेंट राइट. उसके बेसिस पे यू हैव टू टेक द एक्शन प्लान. एक्शन प्लान को आपको एक्शन वहां पे परफॉर्म करने का है, उसके ऊपर एक्शन लेने का है, और एक्शन लेने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा. तो ये जो साइकिल है, करेक्ट, ये जो साइकिल है आपको क्या है कि वन टाइम नहीं करने की फ्रेंड्स. ये जो साइकिल है आपको वन टाइम नहीं करने की, आपको हर महीने, हर क्वार्टर और एवरी ईयर आपको करने का है ये सब चीजें. तभी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ रिपोर्ट्स है वो देखेंगे कि मंथली बेसिस पे, कुछ क्वार्टरली बेसिस पे नंबर अलग अलग हो सकते हैं. तो आपको क्या करने का, ये साइकिल है आपको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करने का है कि आपका कंप्लीट होता है. तो आपको क्या करने का, ये जो प्रोसेस है आपको हर ईच एंड एवरी डे आपके बिजनेस में आपको इम्प्लीमेंट करने का है. ठीक है, कितने जो लोग हैं अपना ये जो बिजनेस में ये जो साइकिल है वो कल से आपको इस्तेमाल करेंगे. ये टाइप करो, जो जो लोग है रेडी है कि हमें ये जो साइकिल है, ये जो बिजनेस के प्रोसेसेस है हमें इम्प्लीमेंट करने का है, तो मुझे उसको हमें श्योरिटी दो कि ठीक है हम ये जो बिजनेस का प्रोसेस है हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं.
उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन से होते हैं, कि सभी को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके बाद में होता है कि हमारा बैलेंस शीट्स होते हैं, और उसके बाद में होता है हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो हम तो देखते हैं कि ठीक है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है कि हम कुछ लोग जो है कि वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे देखते हैं, मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट है बहुत सारे बिजनेस में वो क्रिएट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी हमें हर मंथली बेसिस पे यहाँ पे बनाना चाहिए। तो उस जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका पर्पस क्या होता है वो आप हमें जानना जरूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पर्पस है कि वो है कि हमारे कि वी नो बिजनेस परफॉर्मेंस, हमने जो भी इस साल में, इस क्वार्टर में, इस महीने में हमने जो भी परफॉर्मेंस किया हमारे बिजनेस में, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है वो कब पता चलेगा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हम बनाएंगे, रिव्यू करेंगे, तभी पता चलेगा। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है वो बताता है हमारे बिजनेस का जो परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा एक हमारे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट पूरा जब हम देखेंगे तो उस समय हम पता चलता है कि हमारे बिजनेस का हेल्थ कैसा है, कि हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमारे एसेट ज्यादा है, कम है, हमारे लाइबिलिटीज क्या है, हमारे लोन्स क्या है, वो सब चीजें हमें क्या पता यहाँ पे पता चलता है कि बैलेंस शीट के थ्रू यू नो कि व्हाट इज योर बिजनेस हेल्थ, बिजनेस का हेल्थ क्या है। उसके बाद में होता है कि आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि आपके बिजनेस में फंड्स का इनफ्लो कहाँ से होता है क्या, और आउटफ्लो कहाँ से होता है, क्योंकि आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग होता है और बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग होता है, वो सेम कभी भी नहीं होता है। तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा कि आपके बिजनेस में अनरियलाइज बहुत सारा प्रॉफिट है, वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में आता है। मगर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी कैश का इनफ्लो कितना हुआ है और आपके कैश फ्लो का आउटफ्लो कितना हुआ है वो यहाँ पे हमें पता चलता है। तो आपने ये जो तीनों स्टेटमेंट का पर्पस जानने के बाद में उसके ऊपर आपको क्या करने का, एक्शन लेने का, जो हमने प्रीवियस जो स्लाइड से उसमें देखा। दोस्तों ये जो हम देखते हैं कि हमारे जापानीज जो लोग होते, पीपल होते, तो उनका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है। उनका जो लाइफ, एवरेज लाइफ है वो 90 ईयर 100 ईयर्स तक लोग वहां पे नॉर्मली उनका एज लाइफ होता है। मगर वो क्यों होता है? तो ऑब्वियसली कि उनके जो भी डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है, जो हेल्दी फूड खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो फास्ट नहीं, वो स्लो खाते हैं बहुत ज्यादा। उसमें होता है कि वो एक्सरसाइज के ऊपर जो फोकस वो करते हैं। उसके लिए क्या है कि उनको जो जापानीज लोग हैं, अगर इंडियन और जापानीज लोगों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि हमारे जो इंडियन लोगों का है कि 60, 70, 75 ईयर्स का एज एवरेज एज होता है। मगर वही हम अगर जापानीज लोगों का देखेंगे वो 90, 95 और 100 प्लस ईयर भी नॉर्मली जीते। तो ये सब चीजें वो क्या कर लेते हैं कि हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में उनके पास होता है कि हेल्दी रहने के लिए जो भी चीजें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर उसके अगर हम कोरिलेट करेंगे हमारे बिजनेस के साथ तो कैसा होना चाहिए कि हमारे जो बिजनेस का लाइफ कितना है। हमारे इंडियन के बिजनेस जो है, कुछ कुछ जो पुराने बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो ठीक है कि 100 ईयर 50 ईयर से चल रहे हैं। मगर अभी रिसेंटली अगर देखते हैं हम तो क्या होता है कि 3-4 साल 5 साल में बहुत सारे लोग बहुत सारा बिजनेस, नंबर ऑफ बिजनेस शुरू करते हैं
और वो बंद भी हो जाते हैं, कब चालू हुआ नया बिजनेस, कब बंद हुआ है, वो लोगों को पता नहीं चलता। तो हमें हमारे बिजनेस का अगर लाइफ बढ़ाने का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे बिजनेस का हमें क्या है कि फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना जरूरी है, करेक्ट है। तभी पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में व्हाट इज वेंट रॉन्ग, व्हाट इज वेंट राइट। ताकि ठीक है, जैसे हम हमारे जो हेल्थ का चेकअप करते हैं कि एनुअल बेसिस पे जाके करते हैं, तो हमारे बिजनेस का हेल्थ चेकअप है वो करते हैं कि नहीं करते हम? बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करते। कि जो मेरा जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे जो बिजनेस ओनर को जब हम मिलते हैं तो उस समय उनके जो फाइनेंशियल नंबर्स है उनके ऊपर फोकस कम होता है, वो निग्लिजेंस होता है कि वो बहुत सारे कम फोकस होता है उनके नंबर्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि ऑब्वियसली होना चाहिए, मगर फोकस आपको आपके फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बिजनेस का लाइफ है वो आपको इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, ऑब्वियसली कि सभी लोग जो है आपके बिजनेस का लाइफ जो है ज्यादा होना चाहते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए क्या है कि हम हमारे फाइनेंशियल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि जैसे हम हमारे हेल्थ का टेक केयर करते हैं, ताकि उसके लिए हम योगा मेडिटेशंस करते हैं, करेक्ट, एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल लैंग्वेज में अगर हमारे बिजनेस का लाइफ अगर बढ़ाने का है, फाइनेंशियल अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या करने का है कि आपके बिजनेस में फाइनेंशियल योगा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। फाइनेंशियल योगा सिस्टम यानी क्या है कि आपके फाइनेंशियल जो डेटा है आपको क्या करने का है, क्रिएट करने का है, उसको रिव्यू करने का है, उसके ऊपर एक्शन लेने की है। तो ये सब चीजें होती है। आपके फाइनेंशियल एक्सरसाइज जो है आपके वहां पे आपके बिजनेस में क्या है कि उसको इम्प्रोवाइज करने का है, तभी आपके बिजनेस का जो लाइफ है वो यहाँ पे इम्प्रोवाइज हो सकता है। अगर आपके बिजनेस में फाइनेंशियल एंगल में अगर आपने देखना कम किया या निगलेक्ट किया तो उसका जो कॉस्ट है आप पे करना पड़ेगा, किसको? हमें खुद को ही पे करना पड़ता है एज ए बिजनेस ओनर, करेक्ट है। ताकि हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन है उसको अगर हार्ट का कोई इश्यूज है और सडनली उसको हार्ट अटैक आ गया, ताकि हम क्या करते हैं उसी के लिए ऑब्वियसली हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो पर्सन है उसका लाइफ है वो सेव कैसे होंगी, उसको हम इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करके उसके ऊपर जो भी एक्सपर्ट्स है, कार्डिक एक्सपर्ट है, उनके हम क्या करते हैं कि सजेशन लेते हैं और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं इमीडिएटली। मगर वही केसेस अगर जब हम हमारे बिजनेस में देखते हैं, ताकि हमारे बिजनेस का अगर फाइनेंशियल बुरा हो गया है तो लोग क्या करते हैं, अरे ये बिजनेस का फाइनेंशियल बुरा हो गया है कि इसका मतलब क्या है कि हमें बिजनेस है वो बंद करना चाहिए। वो मेंटेलिटी हम इंडस्ट्री में अभी देखते हैं। मगर दोस्तों आपको क्या करने का है कि वही होता है कि जैसे पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो हम उसको हॉस्पिटल में लेके जाके उसको ट्रीट करते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं और उसका लाइफ है वो बचाने की हम 100% है वहां पे हम ट्राई करते हैं। मगर वही हम हमारे बिजनेस के एंगल से देखेंगे तो बहुत बार होता है कि अगर बिजनेस हम कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए तो हम क्या करते हैं कि वो शट डाउन करने की कोशिश करते हैं बहुत बार, कि ताकि उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। कि हम बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि हम हमारे इनसे ही हम इंटरप्रेट करते हैं कि हम बिजनेस अभी आगे जाके नहीं चलेगा, तो हमारे एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है बहुत बार हम नहीं लेते हैं। उसके कारण भी होता है कि बिजनेस में जो क्रिटिकल सिचुएशन आ गई वहां से बाहर कैसे निकलने का है वो हमें वे आउट फाइंड आउट नहीं होते। अगर आप आपके एक्सपर्ट्स को अगर वहां पे आप दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपको वे आउट बहुत सारे मिलते हैं। तो
तो आपको क्या करना है, आपके बिजनेस में फाइनेंशियल योगा सिस्टम क्रिएट करने का है। तो योगा सिस्टम क्या है कि फाइनेंशियल एक्सरसाइज करने का है, कि उसमें होता है कि आपके बिजनेस जो भी करते हैं हम, तो आपके बिजनेस प्लान है वो क्लियर होना चाहिए कि हम नेक्स्ट 3 इयर्स में, नेक्स्ट 5 इयर्स में हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि बिजनेस प्लान है आपको क्लियर होना चाहिए। तो बिजनेस प्लान आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करने का है कि बजटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके बिजनेस में। आपको कितना फंड्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिक्वायरमेंट है, वो फंड्स आपको कहाँ से अवेलेबल होने वाले हैं, कि आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है या शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है आपको हर महीने देखना जरूरी है दोस्तों। बहुत बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग है कि एनुअल सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, मगर आपको क्या करने का है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको हर महीना देखने का है। तो ये आपका बैलेंस शीट है, हर क्वार्टरली आपको देखने का आपके बैलेंस शीट में क्या क्या चीज है, आपका वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपके लाइबिलिटीज है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज है, आपको क्या करने का, आपके बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पैसे आपको कहाँ से आ गए, कहाँ से इनफ्लो हुआ है, आपके बिजनेस में कहाँ पे आउटफ्लो हुआ है, वो आपको जानना जरूरी है, हर मंथली बेसिस पे जरूरी है। दूसरा कि आपका वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो कौन देखेगा, बाहर का पर्सन नहीं देखने वाला दोस्तों। हमें क्या करना है कि आपके वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें खुद को ही देखने का है। लोन से वो कम हो रहे कि ज्यादा हो रहे ईयर ऑन ईयर। अगर 3 साल का अगर आप लोन्स का स्टेटमेंट अगर रिव्यू करते हैं कि अगर आपका बिजनेस ग्रो हुआ है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, तो आपके बिजनेस का लोन है कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। मगर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा बिजनेस का जो टर्नओवर है उतना ही है, उसमें इम्प्रोवाइज नहीं हुआ है, मगर लोन का इम्प्रोवाइज तो हो गया है। तो इट इज नॉट गुड साइन इन द बिजनेस। तो आपके बिजनेस में अगर आपका बिजनेस इम्प्रोवाइज हो रहा है तो आपके लोन है, लाइबिलिटीज है, वो ऑलवेज कम होना चाहिए। दूसरा कि रिसीवेबल, रिसीवेबल हमें एक एज वाइज रिसीवेबल देखना जरूरी है। कौन से रिसीवेबल यानी हमारे डेटर, हमारे जो क्लाइंट का जो पैसा आता है, तो हमें कितना ओवरड्यू हुआ है, ओवरड्यू होने के बाद में भी बहुत सारे लोग है वो देते नहीं, तो आपको उसके ऊपर फोकस करने के, आपको कैश फ्लो अगर पॉजिटिव करने के हमारे बिजनेस में, तो रिसीवेबल जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है आपके कैश फ्लो का इम्प्रोवाइज करने के लिए। आपके कस्टमर से जो पैसा है वो ऑन टाइम और बिफोर टाइम आने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आप प्लान करो। आपके जो भी बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन रहेगा, रिकवरी पर्सन है, अकाउंट पर्सन है, उनके साथ मीटिंग करना चाहिए कि हमें हमारे बिजनेसेस जो है वो रिसीवेबल ऑन टाइम और बिफोर टाइम आना जरूरी है, उसको क्या करना चाहिए। दूसरा है कि आपके इन्वेंटरी ऑन स्टॉक जो है, तो स्टॉक तो बहुत सारे जो होते हैं, अमाउंट भी बहुत सारा होता है हमारे बिजनेस के स्टॉक में, मगर उसमें से कौन सा स्टॉक्स जो है वो मूवेबल है, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट हो जाती है, आता है जाता है आता जाता है। कौन से स्टॉक है वो अनमूवेबल है, मिस बहुत सारे 6-7 महीने से कुछ स्टॉक है वो डे स्टॉक हुआ है, उसमें डिमांड नहीं है, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर मूवेबल एसेट स्टॉक है तो मूवमेंट हो जाता है, मगर अनमूवेबल स्टॉक है तो उसको आपको क्या करना है, चेक करने का, और यू हैव टू टेक डिसीजन कि हमें अगर कम प्रॉफिट मिल रहा है मगर आपके कैश में उसको कन्वर्जन हो रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी वो नो मूवेबल स्टॉक है उसको आपके इन्वेंटरी से कम होना ज्यादा चाहिए। और आपके बिजनेस में जितना कम स्टॉक उतना ही आपके कैश फ्लो के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो आपको एक्शन लेने का है कि आपके जो बिजनेस का स्टॉक है हम कैसे कम कर सकते हैं।
करेक्ट है। तो अभी ये सब चीजें हमने देखा, तो ये क्या है कि आपके एक्शन प्लान है कि हमने सब ज्ञान लिया, ठीक है, कि संतोष जी आ गए, हमने उन्होंने क्या किया कि सेशन दे दिया, मगर बहुत बार होता है कि हम एक्शन क्या ले, नॉलेज तो मिल गया, नॉलेज के बेसिस पे हमें आगे जाके सब कैश फ्लो इम्प्रोवाइज करने का, फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रोवाइज करने का है, तो हमें एक्शन क्या करना चाहिए। तो आपके बिजनेस में आपको क्या करना है, फाइनेंशियल योगा सिस्टम इम्प्रोवाइज करने की। फाइनेंशियल योगा सिस्टम यानी क्या कि फाइनेंशियली जो भी यहाँ पे हमने लिखा है कि बिजनेस प्लान होना चाहिए, बजटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिव्यू करना चाहिए आपको, और वो क्या है कि क्वार्टरली या एनुअली नहीं, और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। क्वार्टरली बेसिस पे होना चाहिए, कुछ स्टेटमेंट हमें वीकली बेसिस पे देखना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स है हमें डेली बेसिस पे हमने रिव्यू करना जरूरी है। ताकि होता है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं कि अगर बॉडी को स्ट्रांग रखने का है, हम अगर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में एक बार जिम में जाके एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होंगी नहीं होंगी, करेक्ट है। तो यही सेम कंसेप्ट है हमारे बिजनेस के लिए भी अप्लाई होती है कि फाइनेंशियल आपको सिचुएशन इंप्रोवाइज करने का है, तो एक्सरसाइज, फाइनेंशियल एक्सरसाइज आपको डे टू डे बेसिस पे यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का, एक्सरसाइज आपको फाइनेंशियल एक्सरसाइज हर रोज करने का है आपके बिजनेस में, करेक्ट। कितने लोग है वो सब इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ताकि क्या है कि अगर आप आपके बिजनेस में एक्शन लेंगे तब भी ये सब हम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सब सेशन हम ले रहे हैं तो यूजफुल है। अगर हम उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो जो भी नॉलेज आएंगे, ठीक है, कि हम 1-2 दिन आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है, ये सब चीजें हमने संतोष जी ने बताई है, मगर 3-4 दिन में आप सब भूल जाएंगे। ताकि ये क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसके ऊपर काम करने का, एक्शन लेने का है, करेक्ट है। तब भी आपके जो फाइनेंशियल जो है, आपके बिजनेस का कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल है, यहाँ पे इम्प्रोवाइज होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड दिस सेशन। क्या आप बहुत सारे जो लोग हैं कि मोर देन 23 लोग जूम के ऊपर है, और बहुत सारे जो लोग हैं कि वो लाइव अपने फेसबुक एंड अदर मीडिया में वो भी है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप अनम्यूट करके यहाँ पे पूछ सकते हो। Just thank you. Before we get into question and answer, I will just interact for a few minutes. Yes, Anand ji, definitely आपका सवाल लिया जाएगा. Before that, I would like to give a vote of thanks to Mr. Santosh Kavre. Wonderful session. As name suggests, जैसे कि blueprint, बिजनेस का ब्लूप्रिंट, जो कैश फ्लो के लिए जो ब्लूप्रिंट है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया, राइट। जैसे कि कैश फ्लो का कैसे सही इस्तेमाल होना चाहिए, अगर वो ढंग से असेट में कन्वर्ट होता है जो दोबारा इनकम के लिए काम में आ जाए, अदरवाइज वो कैश फ्लो हो जाता है इफ यू स्पेंड ऑन लायबिलिटीज। सो कैश फ्लो जो इन है और आउट है, उसका बेहतरीन तरीके से उन्होंने एग्जांपल दिया। और सबसे बेहतरीन जो मेन इसका जो क्रक्स का था, या मेन जो चीज था, बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग, तो एक सिंपल स्लाइड में उन्होंने इतना सारी चीजें बताई है, राइट। पहले डेटा होना चाहिए, उस डेटे का एक रिपोर्ट बनना चाहिए वेरियस पैरामीटर के ऊपर, देन वो पैरामीटर लेके आपको एनालिसिस करना चाहिए। थ्रू दैट एनालिसिस यू विल फाइंड सर्टेन गैप्स इन योर बिजनेस, व्हाई इट इज नॉट ग्रोइंग, तो उसके ऊपर एक्शन प्लान करके एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो वेरी फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि हेल्थ मैनेजमेंट का, एक फाइनेंशियल हेल्थ मैनेजमेंट का योगा करना चाहिए। उन्होंने 10 आसन तो दे दिया, ओके। ही हैज ऑलरेडी गिवन 10 आसनास फॉर द फाइनेंस हेल्थ management. Okay, so I thank you very much, Santosh ji, for a wonderful session. So before we get into question answer session, I will just share some few points. तो जैसे कि ये रहा हमारा आज का इंडस्ट्री इनसाइट सेशन,
जो हम हर महीने में फर्स्ट वीक, थर्ड वीक और लास्ट वीक में ये अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और अदर जो सैटरडेज होते हैं या फ्राइडेज होते हैं, वहाँ पे हम लोग नव ऊर्जा के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हेल्थ रिलेटेड, सोशल लाइफ रिलेटेड प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज का ये हमारा बिजनेस रिलेटेड था, इंडस्ट्री इनसाइट रिलेटेड था। इसमें सारे सेक्टर्स आएंगे, वेदर इट इज अ कंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज अ इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग, जो भी है। तो अलग अलग, जैसा हमने इंडस्ट्री इनसाइट के ब्रीफ में देखा था। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इंडस्ट्री इनसाइट्स। तो अगर आप में से किसी को फिप के साथ जुड़ना है, आपने फिप के बारे में भी इनिशियली 5 मिनट में जानकारी ले ली कि सच ए वंडरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए काम कर रहा है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ये तो प्लेटफॉर्म, ये स्पॉट बोल के एक मेंबरशिप हमारे पास अवेलेबल है, विच इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ मेंबरशिप। आप इस क्यूआर कोड, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्यूआर कोड का या इस लिंक के जरिए आप अपना एक सिंपल फॉर्म है, आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन, देखिए पर्पज क्या है, एक है ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ये है कि नेटवर्किंग करना। नेटवर्क कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, नेटवर्क का पर्पज क्या है। नेटवर्क विल ऑलवेज हेल्प टू बिल्ड रिलेशंस वन टू वन एंड ग्रो योर बिजनेस थ्रू द नेटवर्क। देन इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, वन टू वन बिजनेस प्रमोशन, ये सारी चीजें होते हैं। और स्पॉट मेंबरशिप में प्राइमरी लेवल पे तो ये ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन आप कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, एक ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप प्रमोट कर सकते हैं। सेकेंडरी लेवल पे जो मेन नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ये मेजर प्लेटफॉर्म है, इसका ये लिंक है या क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके आप FIP के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसको जो स्पॉट मेंबरशिप में जो भी एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, वो तो मिलेंगे मिलेंगे। उसके अलावा नेटवर्क प्लेटफॉर्म में जो आप पार्टिसिपेट अगर करते हैं तो यू विल बिकम, मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अदर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि हम एग्जीबिशंस करते हैं या आपका जो बिजनेस प्रमोशन के लिए जो कोर टीम मेंबर होता है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। ओके, तो now I once again thank you on all on behalf of FIP and all of you to Mr. Santosh Kavre. Now the house is open for you all for question and answer session. तो सबसे पहले सवाल करने के लिए अनंत चिंचोलकर, उन्होंने हाथ उठाया। ठीक है अनंत जी, आप अपना सवाल करिए। हाँ, सवाल कुछ नहीं है। अब मुझे पहले फैकल्टी का नाम और कांटेक्ट नंबर चाहिए, और मैं FIP के सभी मेंबर्स को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे जो इन्होंने 1 घंटे के अंदर जो समझाया सब बातें, कि जिसमें हम जो सही बताया उन्होंने कि आप बिजनेस बंद करने की बात करते हो, लेकिन यू डोंट चेकअप गिव योर दिस थिंग अप्रोच टू स्पेशलाइजेशन। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर कांटेक्ट नंबर मिले तो हम सर से कनेक्ट रह सकते हैं। श्योर। संतोष जी, आप क्या करिए, चैट बॉक्स में आप अपना नाम और कांटेक्ट डिटेल्स, नंबर एंड ईमेल डाल दीजिए। ठीक है, और मैं धन्यवाद देता हूं इनको और आप सभी मैनेजमेंट टीम को जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए। Thank you, sir. You are most welcome. This is our basic job and duty of this organization. Thank you very much. Thank you, Yes, sir. anybody else? Yeah. आप ईमेल भी डाल दीजिए संतोष जी। Yeah. Hello, sir. This is Ajish here. या अजित जी। Yeah. Sir, could you please repeat that last financial health? You told 10 points. In that, I saw loans and liabilities. So could you just repeat the 10 points again and specialize on this, focus on this loans and liabilities, sir? 1 minute, I'll show that slide. Yeah. Yeah. This point. First is that you should have a business plan.
आपको जो भी आगे का ये 3 साल 5 साल में आपके बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए, वो आपके बिजनेस प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए आज ही, ताकि उसके ऊपर आप क्या करें, एक्शन करें। दूसरा है कि जो भी बिजनेस प्लान एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको बजटिंग कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है आपके पास होना चाहिए, कि मंथली कितना इनफ्लो आउटफ्लो आएगा, साल में कितना इनफ्लो आउटफ्लो आएगा, और आपके जो भी ब्रेक इवन, कभी कभी स्टार्टअप होते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितने महीने में आना चाहिए, तो आपके पास बजटिंग हो। दूसरा है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो एक स्टेटमेंट है, आपने क्या है कि ये स्टेटमेंट आपको हर महीने क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे देखना चाहिए। वर्किंग कैपिटल चेक करना चाहिए, आपका कितना वर्किंग कैपिटल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोन से कम हो रहे कि ज्यादा हो रहे, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। लाइबिलिटीज है आपकी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। रिसीवेबल का ट्रैक कितना है आपका, वो चेक करना है कि आपके एज वाइज रिपोर्टिंग होती है कि आपके रिसीवेबल के 30 0 to 30, 32, 60, 60, 90, 90, 180, अबव 180 है, तो आपको ट्रैक करने का है। कभी कभी बहुत सारे बिजनेस के ऊपर हम देखते हैं कि 1 साल 2 साल पुराने भी डेटर्स हो जाते हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। दूसरा है कि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रीज में होते हैं, कि जो प्रोडक्ट में होते हैं, ट्रेडिंग में होते हैं, उनके पास बहुत सारे जो इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ते हैं। अगर उसमें इन्वेंट्री में आपके मूवेबल इन्वेंट्री कौन से, नॉन मूवेबल इन्वेंट्री कौन से, वो आपको ध्यान में रखना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। हाँ, आप ये फोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, 10 मंत्राज है आपका फाइनेंशियल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। And one more thing, this complete session is available, a recorded session is available on FIF social media, so you can refer it as many as times. करेक्ट। यस आनंद जी, आपका और दूसरा Good सवाल। evening, everyone. हेलो, यूट्यूब Good में evening, फेसबुक में रहेगा। CBK. Good evening. गुड इवनिंग सर। हाँ, CBK. Good evening. My voice is reaching. yes sir, welcome sir, welcome. From yeah, how are you guys? So wonderful. Right now I'm in Vijayawada. I'm very happy to, I'm really congratulating Santosh. It's a wonderful presentation. And honestly speaking, you taught us, those who are not from commerce, the real financial health, how to maintain. And I'm very happy to have, where I'm basically business mentor. We always try to bring like you knowledgeable people. The purpose is here to every participant to understand, as Anant sir has also accepted that this is what the beautiful presentation. So I'm here for appreciation. CBK, I have no like Thank you sir. He is one of our director member, Dr. Popatrao Mohite. Okay, actually he is traveling through his busy schedule. He tried to join us. Thank you, Dr. Sir. Okay, थैंक यू सो मच। अनंत जी, आपका और एक सवाल है, शायद आप अनम्यूट करके पूछिए। You raised your hand. No, I think the hand was raised. Okay. Anybody else? Yeah, yes, sir. Thank you. This is Ajish again from Bangalore. CBK, my question is not, but my request to you, you please have his continuous session at least 3 to 4, where number of other entrepreneurs can gain a practical knowledge from him. My request to you. Yeah, so it's going on. Okay, we'll have. देखिए, ये तो बिजनेस ब्लूप्रिंट है। अभी तो पर्दा तो खोलने के बाद और आएंगे, कवरे साहब और आएंगे और दूसरा टॉपिक लेंगे हमें। Thank you. देखिए, इस सेशन में सब कुछ हो नहीं सकता है, करेक्ट। तो उन्होंने नाम ही वैसा रखा है, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट में उन्हें ढंग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, which we everyone is appreciating. And next level programs will have a different topics to get into a depth knowledge. Okay, but meantime जिसको ये तो आप उन्होंने अपना नंबर और ईमेल आईडी दिया है, you can connect with him right directly. तो अभी कुछ आज का सेशन के ऊपर जो भी हमने नाम, अच्छा मोहम्मद जी आप अनम्यूट करके, मोहम्मद आसिफ. Sir, before that somebody was asking a question. Somebody from Bangalore. Yeah, thank you. Actually, sir, suppose we are into this commercial construction and commercial rental.
So what happens, it's a very capital intensive business, like for around 1.5 years, we invest like 2-3 crores and we'll get returns on a monthly basis after 3 years. So how should our cash flow be planned? Could you throw some lights on construction industry, sir? Thank you. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, उसमें होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है कि उनके इनिशियल रेवेन्यू शुरू होने के पहले उनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करने का है कि जैसे हमने जो लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा कि आपको क्या करना चाहिए कि बिजनेस प्लान, जो भी हम कौन सा भी बिजनेस शुरू करेंगे, आपका जो भी प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो आपको क्या है कि बिजनेस का जो प्रोजेक्ट का प्लान आपको बनाने का है, और वो प्रोजेक्ट के प्लान के लिए आपका कैश का जो ब्रेक इवन है वो आपको फाइंड आउट करने का है कि आपका कैश का ब्रेक इवन, जैसे हम प्रॉफिट का ब्रेक इवन करते हैं ना, वैसे आपके कैश का ब्रेक इवन कब होने वाला है आपको फाइंड आउट करने का है। वो ब्रेक इवन तक आपकी जो भी कैश का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना ही चाहिए। जो बिजनेस प्लान करेंगे तो उसमें बजटिंग में आपके जो ब्रेक इवन तक आपका जो कैश फ्लो है वो कितना रिक्वायरमेंट है। अगर आपके कैश फ्लो का जो रिक्वायरमेंट है, अलग अलग जो भी वेरियस सोर्सेस होते हैं, वहां से अगर आपको आ रहा है, तभी आपने आपका जो प्रोजेक्ट है आपने शुरू करना चाहिए। बहुत बार होता है कि हम क्या कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है कि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें से 1 करोड़ का हमने फाइनेंस मैनेज किया और कुछ 50 लाख रुपए हमारे ओन फंडिंग से किया, और हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि 50 लाख रुपए वी कैन मैनेज। बहुत बार होता है कि वी कैन मैनेज, मगर जो मैनेज जो है कभी कभी ऐसी सिचुएशन करते आती है कि जो 50 लाख रुपए मैनेज करने के लिए हम खुद मैनेज हो जाते हैं बिजनेस को क्रिटिकल सिचुएशन में लाने के लिए, बराबर है। ताकि जब भी आप ऐसा वर्ड आपके माइंड में आ जाता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट है वी कैन मैनेज, उस समय हम हो जाएगा, मगर बहुत बार होता है कि वो मैनेज नहीं होता है वो सब चीजें। ताकि आपको क्या कि क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो शुरू करेंगे तो उसका जो कैश फ्लो का आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है, तब तक आपका जो कैश है वहां तक रिक्वायरमेंट है वो फिल होना जरूरी है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है आपको। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और नाउ मिस्टर मोहम्मद आसिफ, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए। Yes, sir. Sir, thank you very much. And it was a good session. I thank you so much for FIIP and the today's speaker, Mr. Santosh Kaware. I'm very much thankful. The session it was very good because I'm in accounts line last 15 to 20 years. So it was very much helpful to us. Last time, this is my second session, basically. Last time I attended, I think, GST. It was focused on input, how to take an input and how to manage it. Right. So now my question is about the today's session, how to control the receivable. Receivable part is very essential in working capital. Correct. It is very much receivable as well as the stock, closing stock. I think closing stock it very much impact in the working capital where the money is locked. And it is directly connected to receivable again. So how to maintain that, the two sides? Yes, very good question है। और एक कैश फ्लो जब मैनेज करते हैं कि whenever we prepare the cash flow, तो जो भी रिसीवेबल्स है आपके डेटर्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे आता है कि जब भी आपके रिसीवेबल अगर आपके कंट्रोल में है तो आपके 70-80% का जो कैश फ्लो है वो काम हो जाता है वहां पे। रिसीवेबल कंट्रोल में होना चाहिए। तो रिसीवेबल में कंट्रोल कैसे रखेंगे, उसके लिए मैं नेचर का एक एग्जांपल देता हूँ कि नेचर में कैसे कि जब हम कौन सा भी प्लांट लगाते हैं
कौन सा भी, फॉर एग्जांपल रहेंगे कि हम हमारा जो मैंगो ट्री है, आम का जो पेड़ लगाते हैं, तो उसका जो फ्रूटिंग आने के लिए कितना टाइम लगता है? पहले तो वो 10.5 साल के बाद, 5 साल के बाद में आता था। अभी कहोगे कि ठीक, हम जो करप्टिंग किया हुआ जो पेड़ है वो यूज करते हैं, तो 3-4 साल में आपको क्या आता है? फ्रूटिंग आते हैं उसको, करेक्ट है। मगर फ्रूटिंग आने के लिए आपको 3-4 साल क्या करने पड़ते? उसके ऊपर एफर्ट लगाने पड़ते, करेक्ट है, एफर्ट लगाने पड़ते। यानी क्या है कि फ्रूटिंग के पहले जब भी आप आपके ट्री को फर्टिलाइजर अच्छे देंगे, पानी अच्छे देंगे, टाइम टू टाइम उसको देखभाल करेंगे, तब भी आपका जो ट्री है वो अच्छी तरह से ग्रो होगा और उसको अच्छे अच्छे और ज्यादा फ्रूट्स है वो आएंगे, करेक्ट है। तो वैसे रिसीवेबल का वैसा है कि आपको फ्रूटिंग के पहले जब भी आप अच्छे टेक केयर करेंगे तो आपको फ्रूट ज्यादा आएंगे और अच्छे आएंगे। तो हमारे रिसीवेबल में एक कंसेप्ट है आपको बिफोर इनवॉइसिंग और आफ्टर इनवॉइसिंग। यानी क्या है कि हम आज के रेगुलर बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करते हैं कि हमारे रिसीवेबल जो है वो आफ्टर इनवॉइसिंग हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि हमें पैसा आना चाहिए। मगर आपने, जैसे मैंने ट्री का एग्जांपल दिया कि बिफोर फ्रूटिंग आपको उसको अच्छा खाद और पानी दे दिया तो क्या आएंगे? आपको अच्छे फल आएंगे। तो बिफोर इनवॉइसिंग आप आपके डेटर्स को क्या क्या प्रोसेस ये करते, इंप्लीमेंट करते। यानी क्या है कि जब भी आपका नया कौन सा भी क्लाइंट है उसका एग्रीमेंट इन प्लेस होना चाहिए। एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि पेमेंट टर्म्स क्या है, आपका डिलीवरी टर्म्स क्या है, आपके जो प्रोडक्ट का क्वालिटीज किस टाइप का है, कौन से अलग अलग अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो उसका क्वालिटीज, आपका परचेस ऑर्डर एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसके ऊपर। जब भी आप डिलीवरी करेंगे आपके मटेरियल तो उसका चालान, ये सब डॉक्यूमेंटेशन है प्री इनवॉइसिंग आपको करना जरूरी है। तब भी क्या है कि जब आप रिकवरी करेंगे तो ये सब चीजें की सपोर्ट हो जाता है कि ठीक है, हमने एग्रीमेंट अच्छी तरह से किया, पेमेंट टर्म्स वहां पे क्लियरली हमने मेंशन किए, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जब हम परचेस ऑर्डर एक्सेप्टेंस हमारे क्लाइंट ने किया है, ये सब करने की जरूरत है। कि बहुत बार नॉर्मली होता है कि हम करते हैं कि ठीक है कि मेल किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्या करते हैं, हम मटेरियल डिलीवरी करते हैं और एक्सेप्ट करते, एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम पे पैसा आएगा। ताकि आपको क्या करने का है कि उसको बिफोर इनवॉइसिंग ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन वर्क या लीगल वर्क है वो पूरा होना चाहिए। और उसके बाद में जब आप आपके इनवॉइसिंग करेंगे तो इनवॉइसिंग होने के बाद में उसके ऊपर आपके क्लाइंट के एंड से कौन कौन एक्शन लेने वाला है, बराबर है। क्योंकि बिफोर डिलीवरी तो हमें एक्शन करना पड़ता है सब चीजें डिलीवरी होने तक, और डिलीवरी होने के बाद में एक्शन किसको लेने का है, पेमेंट रिलीज करने के लिए हमारे क्लाइंट को एक्शन लेने का है। ताकि एक्शन लेंगे कि आपके परचेस मैनेजर है उसने जीआरएन बना के आगे सबमिट किया है कि नहीं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके पास टाइम पे इनवॉइस गया है या नहीं गया है, फाइनेंस में जाने के बाद कौन अथॉरिटी है वो अप्रूवल करता है इनवॉइस, फंड्स का अरेंजमेंट कौन करता है और फंड्स को रिलीज कौन करता है। तो कौन से पर्सन, जो गवर्नमेंट में हम बोलते हैं ना कि हमारा कोई अप्रूवल सैंक्शन या कुछ अप्रूवल लेने का है, तो एक एक टेबल से दूसरे टेबल के ऊपर, दूसरे टेबल के ऊपर से तीसरे टेबल के ऊपर फाइल जाती है। तो वैसा ही इनवॉइस का भी कॉर्पोरेट में वैसा होता है कि हमारे परचेज डिपार्टमेंट से जीआरएन बनने के बाद अथॉरिटी के पास जाता है अप्रूवल होने के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, उनके हेड जो है वेरीफाई साइन करते हैं, फंड का अरेंजमेंट करते हैं, और उसके बाद में फाइनेंस पर्सन है और रिलीज करता है। तो उसमें कौन से स्टेक होल्डर है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो ज्यादा जरूरी आपको है। ताकि क्या है कि जब भी आप इनवॉइस सबमिट करते हैं, एक तो है कि प्री इनवॉइस सब चीज आपको ने डॉक्यूमेंटेशन करने का है, उसके बाद में इनवॉइसिंग होने के बाद आपका परचेज डिपार्टमेंट ने आगे फाइनेंस में सबमिट किया है कि नहीं, या जो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वहां पे आपका इनवॉइस गया है कि नहीं, जो भी
अप्रूवल अथॉरिटी उन्होंने अप्रूव किया है कि नहीं किया है, और वो जो फाइनेंस में या अकाउंट्स में जो भी रिलीज करने वाला पर्सन है आपके क्लाइंट के एंड से, उसके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो इसका जो इंफॉर्मेशन है ट्रैक है, आपको क्या करने का, रखने का है। तभी आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या है कि फॉलोअप लेने की जो सिस्टम है आपको होना चाहिए, हो सकते। तो ये सब एक प्रोसेस होता है कि एक रिसीवेबल प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करते हैं जब भी हम हमारे इंडस्ट्रीज में रिकवरी करने के लिए, तो उसमें होता है कि प्री इनवॉइस एंड पोस्ट इनवॉइस, ताकि ये सब चीजें आपको क्या करनी है कि ऐसा नहीं कि एक मैं आपको कोई एक ट्रिक बताऊं और कल से आपका जो रिसीवेबल कंट्रोल होने वाली है, ऐसी चीज नहीं है। उसमें क्या है कि आपके बिजनेस में ये सब सिस्टम 1 by 1 सिस्टम है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें होने वाली। कि एक दिन का काम नहीं है, मैं आज आपको बताऊंगा और आप कल से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे नहीं। तो ये सब चीजें कि प्री इनवॉइस, पोस्ट इनवॉइस, फॉलोअप सिस्टम, और आपके क्लाइंट के एंड से जो जो पर्सन एक्शन लेने वाला है पेमेंट रिलीज होने तक, उसकी जो इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट में हमारी कौन सी टेबल पे फाइल है, हमें पता चलता है कि अभी इस ऑफिसर के पास है, वो साइन करेंगे तो दूसरे ऑफिसर के पास जाएंगे, वो होने के बाद फाइनल अप्रूव होगा। तो वैसे ये सब चीजें है, तो आपको वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सिस्टम है वो इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और फॉलोअप सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। आपको फॉलोअप क्या है कि जब भी आप इनवॉइस सबमिट करेंगे उसी दिन से आपको फॉलोअप करने का है शुरुआत, ना कि वो ओवरड्यू होने के बाद में। करेक्ट है? तो मैं आपको मिस फेवरेबल आंसर दे चुका हूँ। Yes, thank you so much. Yes, I got it. This is about the pre-invoice and post-invoice follow-up. Correct. Okay, thank you so much, Mr. Santosh. Thank you so much for the guidance. Yes, welcome. Yes, next question, Mr. Abdul Shah Sheikh. सर सर संतोष सर, नमस्कार सर, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। हम लोग फूड प्रोडक्ट में है सर, हम लोग एक्चुअली we manufacture cashew and some other turmeric and all. We process actually. What's happening sir? ये क्या होता है बोले तो सर, उधारी कितना तक देना चाहिए सर? उधारी कितना परसेंटेज में कितना तक उधारी देना चाहिए कस्टमर को? मैं आपको एक बताऊंगा, आपको सभी जो भी बिजनेस करेंगे ना, आपको पूरा बिजनेस वो कैश में करने का है। बिफोर डिस्पैच योर मटेरियल यू शुड गेट पेमेंट, ऐसा प्रोसेस आपके बिजनेस में होना चाहिए। यस सर, अभी हम लोग क्या है, माइक्रो वी आर कमिंग अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस सर। तो अभी हमारा तो बिजनेस पूरा अंधा दरबार बोलते हैं ना सर, ऐसा होता है। मतलब कुछ ट्रैक नहीं है, डाटा शीट नहीं है हमारे पास कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे कुछ डाटा नहीं है। हम लोग मार्च एंड में ले आके सीए को देता है, वो स्टेटमेंट बना देता है, वो हम लोगों को पूरा समझ में नहीं आता है। वो मार्च का गड़बड़ी में वो खत्म हो जाता है सर। और दूसरा जी सर, समझ गया कि बहुत सारे लोग है कि वो प्रॉब्लम होता है कि डेटा नहीं। तो उसके लिए सबसे आपको मैंने जो बिजनेस प्रोसेस सिस्टम बताया था, डेटा आपके बिजनेस का डेटा आपको मेंटेन करने का है। फॉर दैट यू शुड हैव वन फुल टाइम अकाउंटेंट इन योर बिजनेस। नहीं सर, माइक्रो हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड है सर। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑल आर अनऑर्गेनाइज्ड, उसमें फूड नॉन फूड सब लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हम लोग कोई अकाउंट्स, वी कांट अफोर्ड अकाउंटेंट्स, और हम लोग वीकली बेसिस पे सीए का पास नहीं जा सकता है, अकाउंट्स का पास नहीं जा सकता। टर्नओवर कितना सर आपका बिजनेस का? संतोष जी, टर्नओवर एक 2.5 CR है अभी 2-3 साल में। एक मिनट, मैं 2 चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा संतोष जी। दिस इज लोना किया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होने का वजह से हम लोग कुछ भी नहीं, वी आर लाइक हैंडीकैप्स। हमारा पास एक मिनट संतोष जी, एंड ऑल ऑफ माय ऑडियंस,
Just I will introduce Ramnath Devkar. He is the founder member of FIP. Ramnath Devkar जी जो है उन्होंने ये FIP ऑर्गेनाइजेशन को he is the founder director करना चाहते हैं. संतोष जी, आपने एक्चुअली जो पिछले 2 आवर से जो सेशन लिया है, इट्स वाज वेरी फैंटास्टिक. बिजनेस प्लान, बजटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, वर्कफ्लो कैपिटल्स, लोन्स, लायबिलिटीज, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी, स्टॉक्स, एक कंप्लीटली बिजनेस जर्नी है. आप सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि संतोष सर ने जो भी कवर किया है, इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक सेशन. अब्दुल जी, आपका सवाल काफी इम्पोर्टेंट है हर एक बिजनेस ओनर के लिए, वो छोटा सा छोटा हो, बिगिनर्स हो या कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस हो, सबके पास यही प्रॉब्लम है. किसी के पास ये प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है. सबसे पहली बात मैं आज संतोष सर ने जो बताया ना, वो सेशन का पर्पस ही यही है कि हमें हमारे बिजनेस को ऑर्गेनाइज बनाना चाहिए. चाहे वो आज चालू किया हो, कल चालू किया हो या 10 साल का बिजनेस का स्टोरी हो, हमारा बिजनेस का जो हिस्ट्री है ना, जो जर्नी है ना, उसको जर्नी बनाना है. और कोई भी जर्नी में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यार मुझे बॉम्बे जाना था और मैं भूल के दिल्ली आ गया, मैं कोलकाता में आ गया. इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते. सो इसीलिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डेट से ही आपको उसको ऑर्गेनाइज बनाना चाहिए, तभी आप आपके बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हो. अगर आप आज के सेशन के सारे पॉइंट्स को एक बार वापस से रिव्यू करोगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए है. और ये जरूरी नहीं है कि आपको, आपके पास अगर बजट नहीं है तो आपको 10 लोगों की टीम ही होना चाहिए. आप 2 लोग भी उसको मैनेज कर सकते हो, और उसी काम के लिए 100 लोगों की भी जरूरत पड़ती है. लोग कब लगते हैं? जब हमारे बिजनेस का स्कोप बढ़ता है, उस टाइम पे. जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लेके आना है, उस टाइम पे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन ये सारी चीजों के साथ साथ मैं और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपके बिजनेस में डिसिप्लिन होना चाहिए. जैसे हमारे लाइफ में गुड हैबिट्स की जरूरत होती है ना, वैसे गुड हैबिट्स की जरूरत हमारे बिजनेस में भी होती है. और ये गुड हैबिट्स का एक छोटा सा मंत्र है कि आप आपके बिजनेस को वेल ऑर्गेनाइज करो. और जिस टाइम पे आप उसको वेल ऑर्गेनाइज करना सीखोगे ना, उस टाइम पे आपका रिसीवेबल भी आपके पास जो आप चाहते हो उस तरह से बन जाएगा. बहुत बार लोग बोलते हैं कि क्रेडिट नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कैश पे बिजनेस करना चाहिए. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जब ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग जाते हैं ना, तब देखते हैं कि क्रेडिट नहीं देते तो धंधा नहीं होता है. लेकिन उस क्रेडिट को अगर हम डिसिप्लिन मोड में लेके आएंगे ना, यस सर, तो ये आप अच्छी तरह से अचीव कर सकते हो. कोई भी बिजनेस, किसी को भी अगर हम लोग क्रेडिट देते हैं 30 डेज का, तो 30 डेज के अंदर ही आपके पास पैसा वापस आना चाहिए. ये आपको डिसिप्लिन लगाओ, आपको खुद को डिसिप्लिन लगाओ, आपके वेंडर को डिसिप्लिन लगाओ, आपके कस्टमर को डिसिप्लिन लगाओ. आप आपके वेंडर का पैसा विद इन टाइम लिमिट में दे दो, आपके कस्टमर के पास का जो पैसा है वो टाइम में लिमिट में लेके आओ. और ये पॉसिबल होता है, ये पूरी बिजनेस में पॉसिबल हो सकता है. चाहे वो बिजनेस का स्टार्टिंग हो, या चाहे वो बिजनेस का 10 साल का पीरियड हो, या चाहे वो बिजनेस का 100 साल का हिस्ट्री हो. ये एक दिन के बिजनेस के लिए भी पॉसिबल है. वो डिपेंड करता है हमारा और हमारे कस्टमर का और हमारे वेंडर के रिलेशनशिप के ऊपर. सो आप आपका रिलेशनशिप अच्छी तरह से करो, आपके बिजनेस को अच्छी तरह से डिसिप्लिन लगाओ, आप आपके बिजनेस में काफी अच्छे हैबिट्स लगाओ. ये सारी चीजें होगा. और जो संतोष सर ने आज बताया ना, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके ऊपर इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो. वो चीजें अच्छी तरह से समझ के ले लो. जिस टाइम पे वो अच्छी तरह से आप समझ लोगे ना, उस टाइम पे आपके बिजनेस नहीं रहेगा, आप एंजॉय करते करते काम करोगे. दैट इज माय साइड. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर. लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ डाटा शीट डेली वीकली ट्रैक करने के लिए कुछ डाटा शीट मिला, क्या क्या इनपुट्स डालना है सर, ये प्रॉफिट लॉस, ये बैलेंस शीट सब रेडी होने के लिए?
एक्सेल शीट जैसे बना देंगे तो अच्छा। संतोष सर, क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं अब्दुल सर को? बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आपके जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में होता है कि डेटा जो है मेंटेन करने का एक चैलेंजेस होता है, मगर आपको क्या है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कुछ उसमें सॉफ्टवेयर या सब चीजें करने के लिए, मगर आपको क्या है करने, कुछ डेटा है कि आपको पता है कि आपके टर्नर होने के बाद आपका रिसीवेबल कितना है, तो उसका आपको ट्रैक रखना जरूरी है। उसमें क्या है कि आपके बिजनेस के जो भी पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ पे आपको एक्सपेंसेस करने का है, वो सब चीजें देखना है आपको। तो सबसे पहले कि आपके इन्वेंट्री जो आता है, तो इन्वेंट्री का ट्रैक होना चाहिए कि आपके पास कौन सा इन्वेंट्री कितना है, कितना जा रहा है। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेशन, उसमें आप क्या होता है कि हमारे माइंड में आए कि हमारा बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें क्या होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस ऐसा ही चलता रहे। तो उसमें आगे जाके वैसा ही आपने किया तो फिर थोड़ा ये होता है क्या कि चैलेंजेस आते हैं। तो उसमें क्या है कि अनऑर्गेनाइज से आपको क्या करने का, आपके माइंड में आपको पहले डिसाइड करने का है कि मुझे ऑर्गेनाइज बिजनेस के जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करने का है। तो जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको आपको क्या करना है कि वो मेंटेन करना शुरू, ठीक है कि फुल टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर पार्ट टाइम पर्सन कुछ रहेगा तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनको आप ये कर सकते हो कि ठीक है कि मेरे जो भी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुझे निकाल के दे दो हर मंथ मुझे मंथ टू मंथ, ये एनुअल बेसिस पे या उसके बाद में नहीं चाहिए कि मंथली बेसिस पे अगर आप एक महीने का अगर प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगा आपके बिजनेस रिलेटेड। वेरी ट्रू सर। तो उसको आप क्या कर लो कि स्टेप बाय स्टेप आप करना शुरू करो, ताकि क्या है कि ऐसा नहीं कि एक महीने में आप सब चीजें अचीव कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस में क्या करो कि प्रोसेस बिल्ड करना शुरू करो। चलिए सर, इट्स अ गुड पॉइंट सर, गुड पॉइंट टू बी टेकन, नोटेड सर, नोटेड सर, थैंक यू। अब्दुल शेख जी, जस्ट टू ऐड टू दैट, देखिए आपके पास मेरे हिसाब से डाटा शीट का अवेलेबल नहीं है, फॉलो अप करना, ये करना, जो मुझे ऐसा लग रहा है आपका बातों से। एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट है जिसका आपका आधा भी उसका टर्नओवर नहीं रहेगा, उसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, करेक्ट? तो करेक्ट सर। हाँ, आप एक सॉफ्टवेयर छोटा सा आप लगवा लीजिए और उसको एक्सेल में आप डाटा डाउनलोड करके, जैसे अभी संतोष जी ने बताया, उस डेटा से बहुत सारा आप एनालिसिस कर सकते हैं। यस सर, यस सर। अब्दुल जी, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि टैली इज द वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको बहुत सारे तरह के अलग अलग रिपोर्ट्स के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और काफी सस्ता भी अवेलेबल है मार्केट में। तो सर वी आर यूजिंग टैली, वी आर यूजिंग टैली एक्चुअली, लेकिन टैली वो हमारा अकाउंट्स वाला ही यूज करता है, तो उसको बोला तो वो सब दिखा देता है, मैं दूसरा दिन भूल जाता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर कि सबसे पहला काम आप ये करो, जो टैली जो यूज कर रहा है ना उसका यूज करना बंद करो और आपके ऑफिस में टैली का यूज करना चालू करो। जब तक आपका से या जब तक आपका अकाउंटेंट टैली यूज कर रहा है ना, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। यस सर, मेरे को सीखना पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहला आपको सजेशन ये है कि सबसे पहले आपके बिजनेस में ये इम्प्लीमेंट कीजिए, जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना वो आपके ऑफिस में यूज होना चाहिए, ना कि सीए के ऑफिस में या ना कि अकाउंटेंट के ऑफिस में। ये चालू करो, ये चालू करो और मुझे आप कभी भी फोन करो, मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ और आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आने का गारंटी भी देता हूँ सर। ये है सर मेरा प्रॉब्लम, सब छोटा सा टूल यूज करो। यस सर, नोटेड सर, हम लोग यूज करेंगे इसको, मैं भी सीख लूंगा, टैली सीख लूंगा नेक्स्ट 15 डेज का 30 डेज। कहाँ से बोल रहे हैं अब्दुल जी? सर कर्नाटक सर, ये नियर बाय हुबली। अच्छा, हुबली कौन सा प्लेस है? कारवार डिस्ट्रिक्ट पता है सर? कारवार डिस्ट्रिक्ट, कारवार ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್.
ಹೌದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಚಾರ ಸರ್. ನವನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕವರೆ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್, धन्यवाद सर. ओके, मत और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. विल टेक लास्ट 1 or 2 questions maximum. It's already at 8:45. Okay, we are beyond time. अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम आज के लिए कंक्लूड कर सकते हैं. ओके, किसी ने अभी हाथ उठाया. हाँ जी मुर्तजा, आप अनम्यूट करके पूछिए. आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये. आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए पहले. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये अभी वेबिनार है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या? बिल्कुल अवेलेबल है, यूट्यूब में, फेसबुक पे ऊपर ये अवेलेबल रहेगा. आप इसको कंप्लीटली देख सकते हैं, सुन सकते हैं. वहां पे स्लाइड बाय स्लाइड एक्सप्लेनेशन है. आप उसको दोबारा दोहरा रहिए तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. थैंक यू सर, थैंक यू. अरे ये 2 दिन के बाद अवेलेबल हो जाएगा इमीडिएटली. अभी आज नहीं अवेलेबल होगा, कल या परसों 2 दिन के बाद अपलोड कर लेंगे सोशल मीडिया पे. ठीक है, थैंक यू. एक जूम के एक इसमें चार्ट में एक इनका एक ये आया है, क्वेश्चन आया है कि मिस्टर राकेश बंसल है उनका कि व्हाट आर द फेवरेबल रेशियो फॉर बिजनेस. बिजनेस में कौन से फेवरेबल रेशियोज होते हैं कि जब भी हम रिपोर्ट्स बना देते हैं ना, उसमें 4 रेशियोज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक तो आपका एक ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कि जीपी रेशियो है, आपको देखने का है कि मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना इंप्रूव है. दूसरा एक कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो रेशियो है, पीबीटी रेशियो बोलते हैं, वो कितना है आपका. दूसरा है कि आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है. और चौथा है क्या आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है. और ये सब जो रेशियोज है वो डायरेक्टली आपके कैश फ्लो के ऊपर इंपैक्ट होते हैं. तो ये 4 रेशियोज है, आपको हर महीने, हर क्वार्टर और हर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने का है, उसको मंथ ऑन मंथ कंपेयर करने का उसको, ताकि वहां पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो गया हमारे बिजनेस में. अगर 4 रेशियोज के ऊपर आप डिसिप्लिन से आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो रेशियोज है वो इम्प्रोवाइज होना ही होना है. ओके, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? I think we should close for the day. Yeah, I think so. Okay. So once again, Santosh Kavre sir, thank you so very much on behalf of FIIP and all the audience. We expect the same support in future as well. And these businessmen, professionals, they may connect to you directly. You can provide your services according to your this thing. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, friends. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Thank you. Bye.